Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss Section 44 to Section 46 of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, which deals with the law of अरेस्ट। तो लॉ ऑफ अरेस्ट के ही हम आज 3 सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 44, 45, 46। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते आगे और सेक्शन 44 टू 46 हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अरेस्ट का मतलब क्या है कि किसी बॉडी को, किसी पर्सन के मूवमेंट को इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करना कि वो कहीं आ जा ना सके, तो उस सिचुएशन में वो अरेस्ट हो गया ऐसा माना जाएगा। अरेस्ट करने के लिए पर्सन को हैंडकफ करना जरूरी नहीं है, पर्सन को रस्सी से बांधना जरूरी नहीं है। इफ द अक्यूज सबमिट हिमसेल्फ टू द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर देन द अरेस्ट इज कंप्लीटेड। देयर इज नो नीड टू टच द बॉडी ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। तो ये इंट्रोडक्शन था, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। हम बढ़ते हैं सेक्शन 44 टू 46 डिस्कस करने के लिए। सो व्हाट एग्जैक्टली सेक्शन 44 इज? सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। सेक्शन 44 सर्च of place entered by person sought to be arrested. देखिए सब clause 1 of section 44 says that if any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the persons to be arrested has entered into or is within any place. Suppose if the police officer wants to arrest any accused person and he is having a warrant, and even if the police officer wants to arrest any person without warrant, in these two scenarios, if the police officer has a reason to believe that the persons to be arrested is within the premises of so and so person, अगर पुलिस जो विथ वारंट या विदाउट वारंट अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी अक्यूज्ड को और पुलिस को लगता है कि वो अक्यूज्ड ये पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में है या ये प्रीमाइसेस में वो इंटर कर चुका है, सो एनी पर्सन रिसाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शाल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इंग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर a search therein. So whenever police is having reason to believe that the accused to be arrested is entered into the premises of any person, then the owner of that premises is having a duty to afford every opportunity and every facility to search that particular place, because the police wants to search that particular premises, and it shall be the duty of the owner of that premises to afford every opportunity to the police officer to conduct a search in that particular premises. तो बात ध्यान में रखिए, पुलिस अरेस्ट करना चाह रहा है, पुलिस को ये डाउट है कि वो जो पर्सन जिसको मैंने अरेस्ट करना है वो ये प्रीमाइसेस में है, तो वो प्रीमाइसेस के ओनर से कहेगा कि मुझे ये प्रीमाइसेस को सर्च करना है और उस प्रीमाइसेस के ओनर की ये ड्यूटी है कि वो पुलिस को पूरा सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे और वो सर्च करने दे उसको। ये ड्यूटी है उस प्रीमाइसेस के ओनर की। इफ इंग्रेस टू सच प्लेस कैनॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1 टू ब्रेक ओपन any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the persons to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance. Suppose if the police officer demand a ingress, I want to search this particular premises, and if the owner of that premises has not afforded an opportunity to the police officer to conduct a search, then under such a circumstances, police officer can apply a force. The police officer can break a window as well as the door for the purpose of getting entry into that premises and for the purpose of conducting search. बात ध्यान में रखिए कि पुलिस सबसे पहले ओनर को उस प्रीमाइसेस के डिमांड करेगा कि मुझे ये सर्च करना है। अगर उसने फ्री एंट्री दे दिया तो कोई दरवाजा, कोई खिड़की तोड़ने की जरूरत नहीं है, पुलिस सर्च करेगा। अगर उस प्रीमाइसेस का ओनर डिमांड करने के बाद भी एंट्री नहीं देता है पुलिस ऑफिसर को या एंट्री को रेजिस्ट करता है, तो उस सिचुएशन में पुलिस दरवाजा या खिड़की तोड़कर एंट्री कर सकती है उस प्रीमाइसेस को सर्च करने के लिए। यह पुलिस को पावर दिया हुआ है। देखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ
any such place is an apartment in the actual occupancy of a female, not being the persons to be arrested, who according to custom does not appear in public. Such person or police officer shall before entering such apartment give a notice to such female that she is at liberty to withdraw, and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it. Suppose if the place to be searched is under the occupancy of a female who is a Pardanashi woman and she does not appear in public normally, then under such circumstances it shall be the duty of police officer to afford every opportunity to that particular female to withdraw from that premises, and after withdrawal only the police can enter into that premises and can conduct a search. बात ध्यान में रखिए, ऐसी प्लेस कि जहां पर डाउट है पुलिस को कि यहां पर अक्यूज्ड है और उसको पुलिस को सर्च करना है, लेकिन वो प्रीमाइसेस में जो रहती है वो लेडी है और जो पर्दानशी लेडी है जो नॉर्मली पब्लिक में अपीयर नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर को उस लेडी को पूरी अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, वहां से निकलने के लिए पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जब वो विड्रॉ हो जाए वहां से, जब वो बाहर निकले, तभी पुलिस वहां का सर्च कंडक्ट कर सकती है। ये प्रोटेक्शन है पर्दानशी वुमन को सेक्शन 44 में। सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 44 डील्स विथ एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अथोराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एन आउटर or inner door or window if any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein. Suppose if the police got entry into the premises for the purpose of conducting search, but after getting the entry, if someone else has closed the door or closed the window, then for the purpose of liberating themselves, for the purpose of evicting from that particular premises, पुलिस कैन अप्लाई फोर्स। अगर एंट्री पुलिस को मिल गई फॉर एग्जांपल, और एंट्री होने के बाद अगर दरवाजा लगा दिया गया, तो बाहर निकलने के लिए भी पुलिस फोर्स यूज कर सकती है, वो दरवाजा या खिड़की को तोड़ सकती है। मतलब एंट्री लेने के लिए भी फोर्स यूज कर सकती है और बाहर निकलने के लिए भी फोर्स यूज किया जा सकता है। तो सेक्शन 44 ये कहता है कि पुलिस को लगता है कि जिसको अरेस्ट करना है अक्यूज्ड पर्सन वो प्रीमाइसेस में है, तो उस प्रीमाइसेस का वो सर्च कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44। सेक्शन 45 डील्स विद परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। देखिए, a police officer may for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India. So if the police wants to arrest any person, suppose if the accused person has committed an offense in Parbhani, which is the Parbhani is a district in Maharashtra. Suppose if the accused has committed the offense in Parbhani and he flee away from the Parbhani and he reached to Kerala, then police officer can pursue that offender up to Kerala, and police officer is having a power to arrest that person from Kerala. तो एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द पुलिस कैन परस्यू द ऑफेंडर। कहीं पर भी अगर ऑफेंडर ऑफेंस करके भागता है तो थ्रू आउट इंडिया पुलिस उसको परसीव करके अरेस्ट कर सकती है। दैट पावर इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन 46 ऑफ बीएनएसएस डील्स विथ नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। देखिए, the person arrested shall not be subject to more restraint than is necessary to prevent his escape. So what kind of restraint can be applied to the accused while making the arrest? कि किस तरीके से उसको restraint कर सकते हैं accused को जब arrest कर रहे हैं तो उसको the person arrested shall not be subject to more restraint than is necessary to prevent his escape. उसको कितना restraint कर सकते हैं कि वो भागे ना, escape ना हो, इससे ज्यादा restraint नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा पर्सन accused पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया, अगर वो हैंडीकैप है, वो लंगड़ा है, भाग ही नहीं सकता, फिर भी उसको हथकड़ी पहना रहे, ये अननेसेसरी रेस्ट्रेंट में आएगा। क्योंकि वो भाग नहीं सकता, हथकड़ी पहनाने का कोई मतलब नहीं है। दोनों पैरों से हैंडीकैप है फिर भी हथकड़ी पहना रहे, इट इज कॉल्ड अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। सेक्शन 46 ये कहता है कि नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। अननेसेसरी रेस्ट्रेंट अपन उस पर नहीं लगा सकते हैं, जितना नेसेसरी है उतना ही रेस्ट्रेंट करना चाहिए। एक आधा हट्टा कट्टा है और रनर है फॉर एग्जांपल, भाग सकता, उसको हथकड़ी पहना सकते हैं या उसको उतना रेस्ट्रेंट लगा सकते हैं। बट सेक्शन 46 सेज दैट नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। तो यही था सेक्शन 44 टू 46 जो हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।